and we will rejoice and be glad in it. आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंद और खुशी मनाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपनी आंखें बंद करें। Let us close our eyes and look unto the Lord and praise Him and thank Him and glorify His name. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, तेरी स्तुति और महिमा सम्मान करता हूं परमेश्वर पिता। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय हम सबको साथ लाने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना सभा के लिए तुझे गौरव, महिमा और सम्मान देते हैं प्रभु परमेश्वर। संपूर्ण प्रभु परमेश्वर वीक तूने हम सबको संभाला मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, मंडे से लेकर संडे तक तूने हम सबको संभाला, सही सलामत रखा है। इसके लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और मेरे प्रभु यहोवा, फिर से एक बार आपकी स्तुति और महिमा आराधना करने के लिए प्रभु हम एक साथ आते हैं। तेरे लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हैं परिवार सहित, हर एक परिवार को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। और परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक को हम सबों पर प्रभु परमेश्वर मांगता हूँ। हमारे सारे पाप अपराध गुनाहों की क्षमा कर और प्रभु पिता तेरे अनुग्रह से, तेरी कृपा से, करुणा से तो हमें भर दे। पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति में आप हमें चलाइए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से। संपूर्ण प्रार्थना सभा, संपूर्ण प्रभु परमेश्वर सभा शुरू से लेकर अंत तक तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने के लिए प्रभु तू अगुवाई कर। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तेरा सामर्थ्य अभिषेक को मांगता हूँ मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब अगुवाई कर और हमारे संग रहकर हमारी प्रभु परमेश्वर हम पर कृपा कर मेरे प्रभु पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से सारा आदर और महिमा और सम्मान केवल और केवल तुझे देता हूँ मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। धन्यवाद तेरे सारे उपकारों के लिए, तुझे गौरव, मान, महिमा और सम्मान देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। तो अपने दया करुणा से सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியா இந்த நாளில் நம்மை கடந்த வாரமும் கண்மணி போல காத்து இந்த நாளில் நம்மளை தம்மை கொண்டு வந்து சீத்தமா கிருபைக்காக நன்றியோடு ஸ்துதிப்போம். ஹல்லேலூயா. தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியா தமிழ் பாடல்களை நாம் பாடுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி, நன்றி, நன்றி. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். முதலாவதாக எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் 24வது பாடல், எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறார். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். கையில தட்டி ஆரவாரமாக தேவ சமூகத்திலே நம்மளை நாமே தாழ்த்தி படிப்போம். ஆமென். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறார். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். பாவையிருள் என்னை கொள்ளையில் தேவனவன் தீபமாய் என்னை தேற்றினார். பாவையிருள் என்னை வந்து கொண்டு கொள்ளையில் தேவனவன் தீபமாய் என்னை தேற்றினார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். பாதை நோயும் வந்த போதும் வேண்டல் கேட்கிறார். பாதை காட்டி துன்பம் எல்லாம் நீக்கி மீட்டிட்டார். பாதை நோயும் வந்த போதும் வேண்டல் கேட்கிறார். பாதை காட்டி துன்பம் எல்லாம் நீக்கி மீட்டிட்டார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில்.
ஹல்லேலூயா கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். இருந்த என்னை அவர் தூக்கி எடுத்தார், நாற்றமெல்லாம் ஜீவ ரத்தம் கொண்டு மாற்றினார். இருந்த என்னை அவர் தூக்கி எடுத்தார், நாற்றமெல்லாம் ஜீவ ரத்தம் கொண்டு மாற்றினார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். ஹல்லேலூயா ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். தந்தை தாயும் நண்பர் தாயாவும் ஆயினார், நிந்தை தாங்கி எங்கும் அவர் நிந்தை சொல். தந்தை தாயும் நண்பர் தாயாவும் ஆயினார், நிந்தை தாங்கி எங்கும் அவர் நிந்தை சொல்லுவேன். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். ஹல்லேலூயா ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். இவ்வுலக பாடு என்னை என்ன செய்தோ, அவ்வுலக வாழ்க்கை தான காத்திருக்கிறேன். இவ்வுலக பாடு என்னை செய்தோ, அவ்வுலக வாழ்க்கை தான காத்திருக்கிறேன். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். ஹல்லேலூயா ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். இந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். இந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியா மற்றொரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் விடுதலை கீதங்களே 30வது பாடல். என்னை மறவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம்மை மறவாத தேவனை நினைத்து நாம் ஹல்லேலூயா பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக எல்லோரும் கைகளை தட்டி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து படிப்போம். ஆமென். என்னை மறவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். ஆமென். ஜீசஸ். என்னை மறவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் வரைந்தனே ஸ்தோத்திரம். வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் வரைந்தனே ஸ்தோத்திரம். ஆபத்தில் அரும் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபமிதே. ஆபத்திலே அரும் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபமிதே. என்னை மறவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசு நாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். பயப்படாதே வலக்கரத்தாலே பாதுகாப்பே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பயப்படாதே வலக்கரத்தாலே பாதுகாப்பே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பாசமென்னே வைத்ததினார் பறிக்க இயலாதே என்னை. பாசமென்னே வைத்ததினார் பறிக்க இயலாதே வரும்
என்னை என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் தாய் தன் சேவை மறந்து விட்டாலும் வரவேன் உன்னை என்றதாலே ஸ்தோத்திரம் தாய் தன் சேவை மறந்து விட்டாலும் வரவேன் உன்னை என்றதாலே ஸ்தோத்திரம் வரைந்திருந்தோ உள்ளங்கையில் உன்னதர் எந்த புகலிடமே வரைந்திருந்தோம் உள்ளங்கையில் உன்னதர் எந்த புகலிடமே என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் தீக்கற்றோராய் கைவிடேனே கலங்கி நீரே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம் தீக்கற்றோராய் கைவிடேனே கலங்கிறீரே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம் நீரறியாயதும் நெறிடா என் தலை முடியும் எண்ணினீரே நீரறியாயதும் நெறிடா என் தலை முடியும் எண்ணினீரே என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் உன்னை தொடுவோர் என் கண்மணியை தொடுவதாக உரைத்ததாலே ஸ்தோத்திரம் உன்னை தொடுவோர் என் கண்மணியை தொடுவதாக உரைத்ததாலே ஸ்தோத்திரம் அக்கினியே மதிலாக அன்பரே என்னை காத்திடுமே அக்கினியே பதிலாக அன்பரே என்னை காத்திடுமே என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் உனக்கெதிராய் எழும்புமாயுதாம் வாய்ப்பிடாதே என்பதாலே ஸ்தோத்திரம் உனக்கெதிராய் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்த்திடாதே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம் பறந்திடுமே உம் நாமத்திலே பரனே எனக்காய் ஜெய கொடியே பறந்திடுமே உம் நாமத்திலே பரனே எனக்காய் ஜெய கொடியே என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே என்று என்னையும் நடத்துவீரே ஸ்தோத்திரம் என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே ஏற்று என்று நடத்தினீரே ஸ்தோத்திரம் எப்படியோ வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே
துக்கப்படுவோம் உம் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவாய் இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் ஆமென் ஆமென் ஹல்லேலூயா நம்மளை ஒருபோதும் தேவன் மறவாதவரா இருக்கிறார் ஆமென் परमेश्वर कभी भी हमें नहीं भूलेंगे हालेलुया இந்த பாடலோட அர்த்தம் என்னை மறவா இயேசுநாதா எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் परमेश्वर कभी हमें नहीं भूलेंगे ये गाने का अर्थ ये था परमेश्वर कभी हमें नहीं भूलेंगे आमेन கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம் ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல அனுப்பி அந்த பாடலை அனுப்பி இருக்கிறது தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் கைகளை தட்டி உள்ளத்தில் ஆழத்தில் இந்த தேவ சமூகத்திலே இம்மட்டுமாய் நம்மளை காத்து இந்த பரிசுத்த ஆராதனையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்த தகப்பன் முன்பாக நம்மளை நாம தாழ்த்தி படிப்போம் ஆமென் இந்த பாடலை படிப்போம் ஹalleluya ஜீசஸ் தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டனர் எதிர்த்தெழுந்தோர் எத்தனை மிகுந்து விட்டனர் எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டனர் எதிர்த்தெழுவோர் எத்தனை மிகுந்து விட்டனர் ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை தளர்ந்து விடுவதில்லை சோர்ந்து போவதில்லை தளர்ந்து விடுவதில்லை தகப்பனை தாங்குகிறீர் என்னை தள்ளாட விட மாட்டீர் தகப்பனை தாங்குகிறீர் எஸ் லார்ட் என்னை தள்ளாட விட மாட்டீர் கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே படுத்துறங்கி மகிழ்வுடனே விழித்தெழுவேன் ஏனெனில் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் படுத்துறங்கி மகிழ்வுடனே விழித்தெழுவேன் ஏனெனில் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றார் அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே வெற்றி தரும் கர்த்தர் என்னோடு தோல்வி என்றும் எனக்கில்லையே வெற்றி தரும் கர்த்தர் என்னோடு தோல்வி என்றும் எனக்கில்லையே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே
தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் சோத்தரிப்பேன், அறிவிக்கட்டா பேரமைதி பாதுகாக்குதே. ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் சோத்தரிப்பேன், அறிவிக்கட்டா பேரமைதி பாதுகாக்குதே. நீர் விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை, நீர் விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை, அவைகளையே தானம் செய்கிறேன். தினம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன், அவைகளையே தியானம் செய்கிறேன். தினம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன். கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனையில எங்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்தினீரே, இதற்காக நன்றி ராஜா. மீதியான பகுதியும் பரிசுத்தத்திலே தாழ்த்தி ஒப்புடுகிறோம் ராஜா. நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்க நல்ல பிதாவே, ஆமென். Praise God. Hallelujah. हम लोग हिंदी गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 252, 252। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। सॉन्ग नंबर 252, पुराना पुस्तक, ओल्ड बुक। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया।
चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, 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 प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, 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 प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, 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 प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, 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 प्रभु यीशु हमें आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, 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 प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन 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 हालेलुया. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. चंगा करने वाला और छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु हमारा मुक्ति का मार्ग है और स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है, और बिना यीशु के द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वही मार्ग, सत्य और जीवन है, ऐसा वचन कहता है, और उसी के द्वारा हम हालेलुया प्रभु पिता के पास पहुंच सकते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हम इस समय आराधना में जाने वाले हैं, हम प्रभु की आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Song 185. Song number 185.
प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओल्ड बुक सॉन्ग 185। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। इतना मधुर है तेरा वचन, हर याद मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा।
प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, नहीं मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। थैंक यू। दिल की गहराई से स्तुति आराधना करें, तन से और मन से। थैंक यू जीसस। हम अपने पूरे तन से और मन से प्रभु की स्तुति करते हैं। हफ्ते में एक दिन प्रभु प्यारे भाई और बहन हम साथ में आते हैं और हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना आत्मा करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। सारे लोग अपना तन मन प्रभु की ओर लगा रहे हैं। थैंक यू जीसस। आत्मा धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। जैसे तू चाहता है हमें चला पवित्र आत्मा। यीशु ने हमें कहा कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करवाएगा। पवित्र आत्मा हालेलुया, हम तेरे हाथ में समर्पित हैं। हम आपका कोई नियंत्रण हमारे ऊपर हम मांगते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हमारे बीच में यीशु की महिमा होने दे। प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए। थैंक यू लॉर्ड। Worship you. We give you glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. उस गीत को गाएंगे जो सबको आता है, ओ तेरी स्तुति आराधना। थैंक यू। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना मुंह खोले। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तू नया दिन दिखाता है, हाल बनकर मेरी मुझे बचाता है।
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 oh हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको जोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Come on everybody, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तू दया दिन दिखाता है, अलबत्तर मेरे मुझे बताता है। Yes my God, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Oh Jesus, hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको जोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। राजा राजा तेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा, राजा मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा। Thank you, Lord. We worship you. Thank you. धन्यवाद देता हूँ। एक परिवार जो तेरे सानिध्य में बैठा है प्रभु पिता, शूल है प्रभु पिता, जो भी बोझ में बैठे हुए, those who are sitting under the burden and in depression, maybe hallelujah they are nervous in their life, oh God, whatever situation they are going through,
Loving Father, I submit and surrender each and every spirit, soul, and body, hallelujah, at your feet, oh God, and ask you to complete control of our hearts and minds, oh God, and our emotions, oh God. Loving Father, touch, oh God, every heart by the power of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. We need, oh God, the power and the presence, oh God. Thank you, Jesus. Oh God, deliver us from every bondage, oh God, from every satanic, demonic, evilic forces and its attacks, oh God. Protect your people from every harm and danger, oh God, in these difficult times, oh God. Loving Father, we praise you and worship you. Hallelujah, for your glorious presence. We thank you, Jesus. I thank you, Jesus, for all of your love and grace and mercy, oh God. Hallelujah, in these difficult times, oh God. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Jesus. Psalm 2, भजन संहिता 2. Psalm 2. मैं पढ़ता हूं, एक दूसरा आप पढ़िए. जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ सोच रहे हैं. கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனை பண்ணி आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके. பரலோகத்தில் வீட்டிருக்கிறவர் நகைப்பார், ஆண்டவர் அவரை இகழுவார். कब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा. நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோன் மீதில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார். मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ. என்னை கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன். तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा. இப்போது ராஜாக்களே உணர்வடையுங்கள், பூமியின் நியாயாதிபதிகளே எச்சரிக்கையாருங்கள். डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो. குமாரன் கோபம் கொள்ள को चुमो, ऐसा न நீங்கள் हो कि வழியிலே वो क्रोध அறியாமல் करे இருக்கும்படி और तुम मार्ग में ही அவரை नष्ट हो முத்தம் जाओ, செய்யுங்கள். क्योंकि கொஞ்ச क्षण भर में காலத்தில் उसका அவருடைய क्रोध கோபம் भड़कने को பற்றி है. எரியும். धन्य है அவரை वे जिनका அண்டிக் भरोसा கொண்டிருக்கிற उस யாவரும் पर है. பாக்கியவான்கள். आमेन. Amen. Praise God. Testimony time. No testimony? Okay. Go ahead. कुछ बात शेयर करने वाला हूँ, भले ये सबको बुरा लगेगा, भले पास्टर को भी हो सकता है बुरा लगे और को भी बुरा लग सकता है, लेकिन ये दिन में ये कुछ चीज बहुत जरूरी चीज है. एक तो वीडियो अपने लिए कोई भी मुझे Today I am not going to preach, but today I will be doing prophecy update. क्या चल रहा है दुनिया में, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है. और मेरे परिवार को भी ना, बच्चों पे बैठे मेरे भी, इनको भी जरा सुनने दो, क्योंकि बच्चे लोग भी ना ज्यादातर दुनिया में ज्यादा जा रहे हैं, तो बच्चों को भी सुनना चाहिए. जितने भी बड़े बड़े बच्चे बैठे होंगे सुन रहे होंगे ना, पर्दे के पीछे वीडियो बंद करके बैठे, उन सबको भी सुनना चाहिए. और परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे. सबसे पहले मैं वचन पढ़ता हूं कि क्या लिखा है. पहला तिमोथी 4 अध्याय
1 तिमोथी चैप्टर 4 और फिर मैं रिपोर्ट में जाऊंगा। वो रिपोर्ट आपके सामने पढ़ने वाला हूं, जो बहुत ही जरूर रहेगा। ओके, एवरीबडी कैन हियर ना? ओके, मैं पढ़ता हूं, बाद में आप तमिल में पढ़ना। चैप्टर 4। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। रीड इन तमिल। पहला वचन है ना? पहला पहला only one. ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள். ஆமென். 2 Timothy chapter 3. One to five. 1 to 5. 1 to 5. மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. எப்படியெனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் தூசிக்கிறவர்களாயும் தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நன்றி அறியாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாயும் இச்சை அடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமை உள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாயும் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பு உள்ளவர்களாகவும் தேவ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு. आमेन। परंतु यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, टिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, ओके, क्षमा नहीं करने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, स्टबर्न, भले के बैरी, एनिमीज ऑफ गुडनेस, विश्वासघाती, विश्वासघात करने वाले परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ, ढीठ, घमंडी, राइट, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानोगे, ऐसों से परे रहना। लेट्स गो टू फर्स्ट पीटर सॉरी दूसरा पीटर, सेकंड पीटर चैप्टर 3, सेकंड पीटर चैप्टर 3, सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 और 4, 3 and 4, read in Tamil. முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? பிதாக்கள் நித்திரை அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள்। ஆமென்। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और चल भी रहे हैं लोग, ओके, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए तब सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ये उन विश्वासियों के लिए लिखा है, ये दुनिया के लोगों के लिए नहीं कहा है। ये विश्वासी लोग ही कहेंगे कि और ठट्टा करेंगे कि अब यीशु के आने का वचन कहाँ गया यीशु। परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, हालातें कठिन हो रही हैं,
लोग विश्वास से भटक रहे हैं, दुनिया में पाप बढ़ रहा है, बंधन बढ़ रहा है, संकट कष्ट बढ़ रहा है। अब यीशु का आना कहाँ है? सब जैसा ही था वैसे जैसा पहले ही चल रहा था। तो लोग इस तरीके से निंदा करेंगे और लोग घमंडी, स्वार्थी, लोभी और इस प्रकार से लोग घमंडी बनेंगे। और प्यारे भाई और बहनों, ये सब वचन है जो अंतिम दिनों के लिए हम पर लागू होते हैं। ओके, अब हम इस आधार पर एक रिपोर्ट को पढ़ते हैं और उस रिपोर्ट को मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। ओके, एक रिपोर्ट को जो इंग्लिश में है मैं पढ़ूंगा, जो यूनाइटेड नेशंस के ओर से है। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन इज द वर्ल्ड गवर्नमेंट, आपको पता है। ओके, उनका टाइटल है द यूएन डिक्लेयर्स हिज एनिमी एज द क्रिश्चियन चर्च। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियन चर्च इज देयर एनिमी। क्रिश्चियन मसीह कलीसिया अब उनके लिए एक विरोधी संगठन बन गई है। नाउ लेट्स रीड द एजेंडा एंड व्हाट दे हैव टू से अबाउट द क्रिश्चियन पीपल। क्रिश्चियन लोगों के बारे में, मसीह लोगों के बारे में क्या वो कहते हैं, मैं रिपोर्ट को पढ़ता हूं। ओके, द यूएन सेज दैट द क्रिश्चियन चर्च इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट एक संगठन है यूनाइटेड नेशंस की, जो लोगों को दुनिया भर में न्याय दिलाने का काम करते हैं, व्यक्तिगत आजादी दिलाने का काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कहती है कि क्रिश्चियन जो चर्च है वो हमारा विरोधी है। Okay, this is very important. UN says, United Nations says that it will become a world religion to impose humanitarian laws, not spiritual. It's very important sentence. UN कहता है कि हम खुद, यानी यूनाइटेड नेशन कहते हैं हम खुद एक ऐसे नियम और ऐसे कानून लाएंगे जो आत्मिक नहीं रहेंगे, लेकिन मनुष्यों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाए हुए होंगे, जो हम दुनिया के लोगों पर इंपोज करेंगे, यानी कि उन पर लागू करेंगे जबरदस्ती से। ओके, यानी कि बाइबल के नियम, क्रिश्चियन लोगों के नियम जिस पर आज तक दुनिया चलती आई है, पूरा यूरोप अमेरिका चलता आया है, आगे को यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है कि वे लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार राज्य नहीं करेंगे, वे मनुष्यों के अनुसार उनके नियम और रीति रिवाज को दुनिया में लागू करेंगे, सो दैट द वर्ल्ड इज नॉट सब्जेक्ट टू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मांगता है तो मैं ब्रदर को तमिल में ट्रांसलेट करने को बोलता हूँ। ओके, वो कहता है कि world, so that world is not subject to Christian doctrine, so that they cannot impose their spiritual laws. वो कहते हैं कि पूरी दुनिया मसीही लोगों के नियमों पर नहीं चलनी चाहिए। ओके, और उनके आत्मिक तत्वों पर, नियमों पर ये दुनिया नहीं चलनी चाहिए। तो वो कहते हैं उनके नियमों पर दुनिया चलेगी आगे। The UN declares that its principles and declarations serve as a world religion to take control of humanity. वे लोग एक नई जागतिक व्यवस्था जो लागू किए हैं और जो पेंडेमिक, जो कोरोना वायरस की महामारी उन्होंने फैलाई है, और उनके द्वारा जो बंधन उन्होंने मसीह लोगों पर और पूरी दुनिया पर डाले हैं, वो इसलिए कि पूरी दुनिया के लोगों का जो मसीह लोग हैं, रिलीजन है, उनका कंट्रोल, नियंत्रण वो खुद करना चाहते हैं। दैट इज द मेन एजेंडा बिहाइंड देयर पेंडेमिक और दिस कोरोना वायरस एजेंडा। ओके, इन देयर ID 2020 एक उनका एजेंडा है, डॉक्ट्रिन्स उनकी, जिसमें वो कहता है वो प्रोजेक्ट है उनका, जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया में आज उन्होंने उनके नियम डाल दिए हैं, लागू कर दिए हैं, और हम भी उन नियम के अंदर प्रार्थना बंद, ओके, कलीसिया में इतने लोग जाने का, मुंह खोलने का नहीं, मुंह पर मास्क बांधने का, या फिर 6 फुट डिस्टेंस पर बैठने का, सोशल डिस्टेंस, ये सारे उनके नॉर्म्स है, उनके नियम है। और वो कहते हैं in their ID 2020 project they say that it is mandatory to corner Christians to divide their beliefs and faith
they cannot continue to win more lives for their Christian doctrines. वे लोग ऐसा बंधन डालेंगे कि मसीही जो वचन है, मसीही जो तत्व है, मसीही जो वचन है, उनके द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीही न बना पाए, उनके कानून, उनके नियम जो है बाइबल के, वो लोगों तक न पहुंचा पाए। इसलिए उनके अंदर एक ऐसी फूट डालो या फिर उनके विश्वास को दो भाग करो, डिवीजन लाओ और उनको अलग कर दो। ये यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसलिए उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, Christians divide their beliefs and faith, they cannot continue to win more lives. यानी कि हम लोग आत्माओं को न जीत पाए, हम दूसरों तक पहुंचकर सुसमाचार न सुना पाए, इसलिए वे अब हमारे ऊपर ध्यान रखने वाले हैं। We must take power from the church. This is written in the document. We must take away their पावर। वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है कि अब इन मसीह लोगों का जो पावर है, यूनिटी है, एकता है, वो उनसे छीन लिया जाए, और ये छीन लिया गया है हमसे, शुरुआत हुई है। ओके, समझ पा रहे तुम लोग? हमसे वो लोग छीन पा रहे हैं, वो उनकी कोशिश है, और इसीलिए तो उन्होंने ये सब नाटक किया है, ये ढोंग किया है कोरोना वायरस का, और उनके एजेंडे के अनुसार पूरे दुनिया भर में सबसे पहले चर्च रिलीजन पर बंधन डाला जाए, ताकि उनका एजेंडा पूरी दुनिया भर में वे लागू कर सके। उनका एजेंडा कि उनके पास से जो उनके अधिकार है, आवर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, घटनात्मक जो हमारे हक हैं, वो छीन लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उनका एजेंडा है। ओके, Christians commit a crime against gender equality by prohibiting their human rights. They are enemies of humanity. This project was declared in 2000, in year 2000, and began to be partially applied in 2006, and to give it full use in 2020 as law equal rights. उनका एजेंडा है, उन्होंने 2000 में ये एजेंडा बनाया था कि सब पृथ्वी पर के मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को एक समान हक दिया जाए, और इसके खिलाफ चर्च नहीं आना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2006 में उन्होंने कुछ हद तक उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनके एजेंडे के अनुसार 2020 में उनका एजेंडा था कि पूरी तरह से दुनिया भर में उनका ये एजेंडा लागू कर दिया जाए, फुल राइट्स में, और सबको इक्वल राइट्स, इक्वालिटी, यानी कि कोई पुरुष अगर पुरुष से शादी करना चाहता है तो कर सकता है, उनके नियम के अनुसार, वो उनका राइट है। कोई स्त्री अगर किसी स्त्री के साथ शादी करना चाहती है, ओके, समलैंगिक वही विवाह, होमोसेक्सुअलिटी। सो मसीह लोग, क्रिश्चियन चर्च अगेंस्ट दिस डॉक्ट्रिन्स, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये लोग, मसीह लोग इनके विरोध में हैं, और इसके लिए अब हमें उनको रोककर, उनकी ताकत को कम करके, उन पर बंधन डाल के हमारे एजेंडों को लागू करना है, और सबको समान हक देना है। जो समलैंगिक शादी करता है वो भी पोप के अनुसार परमेश्वर का बच्चा है, ऐसा पोप कहता है फ्रांसिस। गए दिन में पोप फ्रांसिस ने डिक्लेयर किया था कि जो इस तरीके से विचार करता है, जो परमेश्वर के विरोध में है। ओके, सो प्यारे भाई और बहनों, हम कैसे दिनों में रह रहे हैं, इसके अनुसार अपने आप को सावधान करो, और यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। अकॉर्डिंग टू द यूएन और फ्यूचर वर्ल्ड रिलीजन, आने वाला एक जागतिक धर्म यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, क्रिश्चियंस वांट टू इंडोक्ट्रिनेट एलजीबीटी ग्रुप्स टू टेक अवे देयर राइट्स। ये एलजीबीटी ग्रुप जो है, यानी कि समलैंगिक विवाह करने वालों का एक जो समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके विरोध में हम मसीह लोग, यूरोप अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर्स लोग, ये लोग उनको उस डॉक्ट्रिन से, उसमें से छुड़ाकर मसीह में लाना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे विश्वासी, सच्चे विश्वासी जो एलजीबीटी के जो लोग हैं, समलैंगिक विवाह करने वाले एक संगठन के लोग हैं, उनको सावधान करके उसमें से छुटकारा पाके उन्हें प्रवेश मसीह के पास लाना चाहते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।
वो उनका हक छीनना चाहते हैं। क्या दोष लगाते हैं हम पर? ये मसीह लोग दुनिया में रहने वाले लोगों का हक छीनना चाहते हैं, वे समलैंगिक शादी करना चाहते हैं, तो करने दो उनको। वो कहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बच्चे ही है, ऐसा पोप ने खुद कहा है। सो ये पोप और ग्लोबलिस्ट और यूनाइटेड नेशंस वाले, यूरोपियन नेशंस वाले, ये सब मिले हुए हैं, तो इनका ही एक ग्रुप है, समूह है, और वो अपने नियम, बाइबल के नहीं, अपने नियम दुनिया पर थोप देना चाहते, लागू करना चाहते हैं। They say that it is a discrimination against their ideology that Christians do not allow abortions. Okay? जो मसीह लोग है, क्रिश्चियन चर्च है, इवन कैथलिक्स और चर्च ऑल्सो एक प्रकार से एबॉर्शंस को, ओके, और डिवोर्स, घटस्फोट देना, इनके विरोध में हुए ना, बिकॉज देयर लॉज प्रोहिबिट इट। हमारे जो नियम है, हमारे यानी कि हमारे यीशु मसीह के नियम कि एबॉर्शन, गर्भपात करना, और डिवोर्स, घटस्फोट देना, उसके विरोध में है। और इसलिए कि ये क्रिश्चियन लोग उनको विरोध करते हैं, उनके डॉक्ट्रिन को विरोध करते हैं, इसलिए हम उनके विरोधी हैं, और वो हमको, यूनाइटेड नेशन हमको विरोधी समझ रहा है। ओके, और हमें वो विरोधी समझते हैं। एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट पॉलीगैमी among other evils, and these violates their rights according to UN. वो कहते हैं कि ये जो समलैंगिक शादियां हैं, इसमें ये मसीह लोग फूट डालते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए क्रिश्चियंस लोगों को हमसे अलग करना है, या उनके विश्वास उनमें, या उनके अंदर फूट डालना है, और उनके नियम रद्द करना है, कैंसल करना है। The United Nations says that it will be the true religion. United Nations says, आपको पता है रेवोल्यूशन के अनुसार 1718 के अनुसार एक जागतिक धर्म बेबीलोन जो बनाया जाने वाला था, उसकी भविष्यवाणी उसमें की है, और अब जानते कि इन दिनों में एक जागतिक धर्म बन गया है। और वो खुद कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन, they will be a true religion that allows the citizens of the world, they will allow to be happy in the way they want to live life under the new world order, under the humanistic religion. वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारी इंग्लिश समझ पाते होंगे। वे कहते हैं कि पूरे दुनिया के सिटीजन्स को हम एक आजादी देना चाहते हैं, हम एक सच्चा धर्म बनाना चाहते हैं, उन्होंने बनाया भी है, और उसको उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम दिया है। उसके अंदर सारे दुनिया के धर्म के लोगों को एक नया फ्रीडम दिया जाएगा, जिसके अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। बाइबल के विरोध में जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई और बहनों, कितना खतरनाक एजेंडा है उनका, और हम किन दिनों में रह रहे हैं? इन्हीं दिनों में, जबकि हमारे आंखों के सामने ये सारी बातें पूर्ण हो रही हैं, और इसलिए हम सबको इन दिनों में सावधान होना है। हम जो मरे हुए हैं, हम जो कमजोर पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, कई सारे विश्वासी, उनको जाग उठने के लिए रिपोर्ट भेजा हुआ है एक सेवक के द्वारा कि इसको कलीसियाओं में पढ़कर सुनाया जाए, और कलीसिया को जगाया जाए, कलीसिया को नींद से उठाया जाए। ओके, the new ongoing religion declares that we must block, वो कहते हैं we must block the way to Christians and disperse their sheep. उनके मार्गों को हम ब्लॉक करें और उनके लोगों को डिस्पर्स करें, हम लोग उनको तितर बितर कर रहे हैं। और यही तो एजेंडा है। आज हम तितर बितर है, हम आज एक साथ नहीं मिल सकते, हमारे पास जगह नहीं है। हम इस तरीके से जूम ऐप पर प्रार्थना चलाते हैं। जिनके पास खुद के मंदिर हैं, वे लोग बैठते हैं डिस्टेंस पर, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार। हमारे पास कुछ नहीं है, सो हम लोग डिस्पर्स किए गए हैं, हम लोग उससे दूर हैं। लेकिन इतना सब हम कितने महीनों से कहते हैं, लेकिन एक फोन उठाकर किसी को फोन करने के लिए भी टाइम नहीं है। मैं क्यों झुकूं? पास्टर को जरूरत होगी तो पास्टर फोन करेगा, हम दशमांश देते हैं, पास्टर हमारा नौकर है, गुलाम है, वो फोन करेगा। कोई बुलाता है प्रार्थना में, अगर मैं भूल जाता हूं तो गुस्सा हो जाते हैं लोग। मैं भूल गया, एक ब्रदर ने बुलाया था, तो वो ब्रदर बहुत गुस्सा हुआ है मेरे ऊपर, लेकिन
प्यारे भाई और बहनों, आज हम कहाँ हैं? मेरा रोल क्या है कलीसिया में? आज हमें मजबूत होकर जीना है अपने पैरों पर। मैं रहूं ना रहूं और कोई कलीसिया का भाई रहे ना रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास कहाँ है? क्यों हम किसी इंसान का सहारा लेकर जीते हैं? क्यों कोई हम हमारे पास नहीं आता या कोई फोन नहीं करता है तो हम डर जाते हैं? हाँ, फोन तो करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहभागिता होनी चाहिए। आज इन लोगों ने हमें अलग कर दिया है, ये इनका एजेंडा है प्यारे भाई और बहनों, ये इनका एजेंडा है कि उनके मार्गों को ब्लॉक करो क्रिश्चियन लोगों के, और उनको डिस्पर्स करो, उनके भेड़ों को तितर बितर कर दो, सो दैट दे स्टॉप बीइंग ग्रुप्स ऑफ पावर, so that they stop being groups of power. उनका झुंड का जो सामर्थ्य होता है उसको तहस नहस कर दो, उनको नाश कर दो, उनको तितर बितर कर दो, ताकि वो एक साथ वापस मिल ना सके, सहभागिता कर ना सके, फेलोशिप कर ना सके। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, उनके ये कोशिश है। क्रिश्चियंस आर an obstacle and an opposition to the excellent work of the UN United Nations or gender ideology, and it is time to take away their rights. Very important statement, very important. मैं फिर से पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करो, फिर मैं हिंदी में समझाता हूं। Christians are an obstacle. मसीह लोग एक रुकावट है उनके लिए, ओके? और जो एक्सलेंट यूनाइटेड नेशन वाले जो एक्सलेंट काम कर रहे हैं, वो खुद ही खुद तारीफ कर रहे हैं, हम लोग एक्सलेंट जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो जेंडर एजेंडा है, आइडियोलॉजी है, जो समलैंगिक शादी के बारे में, या फिर स्त्री स्त्री के साथ पुरुष पुरुष के साथ शादियां कर सकते हैं, तो ये जो उनका एजेंडा आइडियोलॉजी, उसके खिलाफ में ये लोग हैं। इसलिए अभी ये समय है कि उनका जो फ्रीडम है, टू टेक अवे देयर राइट्स टू फॉर्म अ रिलीजन विथ ह्यूमैनिस्टिक, कॉन्स्टिट्यूशनल and moral rights and not spiritual. आत्मिक नियम के अनुसार नहीं, लेकिन ह्यूमैनिस्टिक, मनुष्यों ने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल, उनका भी घटनात्मक जो नियम है वो घटना में बदल भी कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में, और उनके नियम वो लागू कर हमारी फ्रीडम को वो खत्म करना चाहते हैं। तो अगर ये परिस्थिति है तो प्यारे भाई बहनों, तुम्हें और हमें किस तरह से जीना है इन दिनों में, किस तरह से जीना है, आप खुद तय कर देना कि हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं। ओके, बहुत खतरनाक और प्रभु यीशु के पुनः आने के, वापस आने के दिनों में हम खड़े रहे। द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, द अनदर स्टेटमेंट, लिसन केयरफुली, द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड इज अ थ्रेट। ओके, मसीह लोगों के जो बढ़ोतरी है वो दुनिया के लिए खतरा है, वो कहते हैं। शैतान कहता है, शैतान इनके द्वारा कहता है कि जैसे कि आपको पता है मिस्र देश में यहूदी लोग बहुत संख्या में बढ़ गए, तो फारो डर गया, मतलब है ना? हेलो यार, आर यू विथ मी? बीच बीच में हालेलुया, हाँ, बीच बीच में आप अपना हाथ भी दिखाया करो तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ है या नहीं है, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं। सो जस्ट रिप्लाई मी बीच बीच में। सो क्या कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड इज अ थ्रेट। मसीह लोगों का बढ़ना उनके लिए खतरा है, जैसे कि फारो को यहूदी लोगों का बढ़ना खतरा हुआ, आज शैतान को पूरी दुनिया में मसीह लोगों की एकता, मसीह लोगों की स्तुति आराधना, मसीह लोगों का जमा होना, मसीह लोगों का बढ़ना उनके लिए खतरा है, यानी कि शैतान के लिए खतरा है। ओके, इन द वर्ल्ड वी मस्ट न्यूट्रलाइज religious groups for their campaign against our gender ideology project to sterilize children. This is very important. This is very important. Sterilize children for the reduction of the population that we seek. Oh my God. वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एजेंडा है उनका? ये जो वैक्सीन वगैरह सब आने वाले हैं ना, और ये जो उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ में मसीह लोग हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर दो, ये मसीह लोगों को न्यूट्रल कर दो, अब दूर कर दो, इन रिलीजियस ग्रुप्स को हटा दो, उनका पावर कम कर दो, और क्या करे, बच्चे लोगों को स्टेरिलाइज करो फॉर द रिडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि आने वाली पीढ़ी
बच्चों को जन्म न दे पाए। रिडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी सीक, उनका एजेंडा है कि दुनिया में अब आगे बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए। ये वैक्सीन जो आने वाली है, ऐसा कहा जाता है कि वैक्सीन आने वाले दिनों में बच्चों को आगे ऐसा बनाएगी कि वे दूसरे बच्चों को पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें आगे आबादी नहीं बढ़ानी है, डिपॉपुलेट करना है उन्हें, उनके एजेंडे में, उनका ये एजेंडा है। और आगे सुनो, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियंस डिफेंड ट्रेडिशनल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द बाइबल। ओके, क्रिश्चियन लोग जो है वो कहते हैं कि पारंपरिक जो रीति रिवाज है, जो बाइबल के अनुसार है, उनको डिफेंड करते हैं, उनके बाजू में खड़े रहते हैं। which does not fit for this time of globalist and the united government, UN गवर्नमेंट फॉर अ न्यू ह्यूमैनिटी। नए जागतिक व्यवस्था के लिए, मनुष्यों की व्यवस्था के लिए ये बाइबल की व्यवस्था बहुत ही उनके लिए रुकावट है। और देयर वैल्यूज of the Christians are rooted in religious interpretations of men and women in discriminatory way, because there is no one to move them from their concept, and they do not accept same-sex marriage union. ये मसीह लोग उनके उनके धर्म के अनुसार और उनके बाइबल के तत्व के अनुसार, नियम के अनुसार, वे स्त्री और पुरुषों को का जो हक है समलैंगिक शादियों के लिए, वे लोग राजी नहीं है, वो लोग मानते नहीं हैं, वे लोग मानते नहीं हैं। सेम सेक्स मैरिज यूनियन को वो लोग विरोध कर रहे हैं, मसीह लोग, इसलिए वे लोग हमारे विरोध में। एंड दिस undermines their rights. The UN says that Christian churches have to join them. हमें वो कहते हैं, हमारे बारे में कहते हैं, क्रिश्चियन चर्च को हमारे साथ ज्वाइन होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के साथ, उनके एजेंडे के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। क्यों? टू डिफेंड ह्यूमैनिटी राइट, अबॉर्शन एंड LGBT community and others declares not to do so. It is considered a hate crime and violation of gender rights. उनका कहना है कि वे हमारे विरोध में हैं, ये कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे विरोध में, हमारे एजेंडे के विरोध में है, और इसलिए उन्हें हमसे अलग करना चाहिए, या फिर उन्हें हमारे साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम इतने कठिन समय में हैं कि इनका एजेंडा कितना खतरनाक है, देखो, पूरे मसीह लोगों के लिए। और तुम ये बात अगर जानते नहीं होगे तो आज एटलीस्ट सुनो और अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, आगे मैं पढ़ता हूं, थोड़ा रिपोर्ट भी बाकी है। ओके, द यूएन डिक्लेयर्स दैट द ग्रेट इवल इज इन लैटिन अमेरिका। ये जो दुष्टता कहते हैं, वो लोग दुष्टता कहते हैं, वो लैटिन अमेरिका में है, ऐसा उनका कहना है। Because they do not give into what the Bible says, and these interpretations are not for this globalist time. वो लोग बाइबल के जो अर्थ निकालते हैं ना, वो कहते हैं वो अब इन अंतिम दिनों के लिए ग्लोबलिस्ट जो एजेंडा है उनके फेवर में नहीं है। बाइबल के जो ये नियम है वो उनके फेवर में नहीं है। वो जो अर्थ निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन, वो सही नहीं है, उन्हें हमारे एजेंडा के द्वारा चलना पड़ेगा। और अभी हमने तो वचन पढ़ा ना, अंतिम दिनों में भरमाने वाले आत्माओं पर लोग ध्यान लगाएंगे। यही वचन था ना, वो यही वचन था कि अंतिम दिनों में लोग भरमाने वाले आत्माओं पर ध्यान लगाएंगे। ओके, वी हैव कैरिड आउट tenacious work so that Christian groups do not concentrate many people. We decided to block their way. हमने तय किया है कि हम उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। ओके, decided to block their way, to amend them, to see their reactions to the agreements, and to divide in their own faith. उनके विश्वास में उन फूट डाले और उनको ये बातें समझाई जाए, और to work for the most vulnerable part. ऐसे लोगों के बीच में जाकर काम वो लोग करते हैं और उन्हें हमारे विरोध में, हमारे एजेंडे के विरोध में खड़े करते हैं। उन्हें रोकना जरूरी है कि उन्हें रोकना और उन पर नजर रखना है।
हमें हमें हमने ऐसा एक काम चालू किया है जो मसीह लोगों पर नजर रखेगा, कंसंट्रेट करेगा कि कौन से ग्रुप क्या कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं। आने वाले दिन में प्यारे भाई और बहनों, आप भी हमारे उनकी नजर यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर क्या क्या प्रचार होता है, यूट्यूब पर क्या प्रचार होता है, कौन सा पास्टर क्या बोलता है। अगर वो उनके एजेंडे के खिलाफ है तो उनका जो वीडियो है वो यूट्यूब से हटाया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें यूरोप अमेरिका में हो रही है। सो आने वाले दिन में हो सकता है यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, जूम पर भी वो लोग बैन डाल सकते हैं। इस तरह से हम जूम पर भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे वो अपना जाल फैला रहे हैं और हमारा राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो हमसे छीनना चाहते हैं। और शैतान धीरे धीरे प्रकट होने के, एंटी क्राइस्ट प्रकट होने के समय में हम लोग जी रहे हैं। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द सर्पेंट, वे लोग कहते हैं, यूएन कहते हैं, दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द सर्पेंट, डिवाइड टू रेन। फुट डालकर राज करो। दिस मेक्स क्लियर द लार्ज नंबर ऑफ न्यू रिलीजियस ग्रुप्स विथ आवर फिलोसॉफी टू सपोर्ट आवर डिसीजंस। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ओके, उनको डिवाइड करो, उनको तोड़ दो और हमारे सपोर्ट में उनको लेके आओ, हमारे डिसीजन के साथ, निर्णय के साथ उन्हें लेके आओ। We have the main leaders of the world's religions to obey our decrees and pass them on to their subordinates. They say we have to erase the religious conscience on Christianity with a new ideology to walk in full freedom with human and not spiritual. ऐसे आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचार प्रणाली को लागू कर दो जो आत्मिक बुनियाद पर नहीं होगी, आत्मिक तौर पर नहीं होगी, लेकिन मनुष्यों के आइडियोलॉजी पर, मनुष्य की विचार प्रणाली पर निर्धारित होगी। ऐसा एक नियम और कानून हमें लाना है। ओके, स्पिरिचुअल राइट फॉर अ न्यू ह्यूमैनिस्ट रिलीजन एज प्रपोज्ड बाय द लीडर फ्रांसिस्को एक व्यक्ति है जिसने एक लीडर जो है, जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, उसने प्रपोज किया है ये सारी बातें इसमें। सो उसके अनुसार दुनिया के रिलीजन्स के लोग जो है, मसीह लोग हैं, उनके नियम कैंसिल कर दो और हमारे नियम को लागू कर दो पूर्ण फ्रीडम में, पूरी तरह से। अगर इस फ्रीडम को, जो उनका फ्रीडम वो लोग देना चाहते हैं, यानी कि एबॉर्शंस, 6-7 महीने का बच्चा भी उनको गर्भपात करके मार डालो, फिर सेम सेक्स मैरिज, जो समलैंगिक शादियां, उनको परमिशन दे दो, उसके विरोध में कोई बात नहीं कर पाएगा। आने वाले दिन में वो सारी बातें कानूनन लागू कर दी गई हैं। सो उनके विरोध में मसीह लोग बात करते हैं, इसके लिए हम लोग उसके विरोधी हैं। We will draw up a law so that they cannot invoke religious freedom. हम ऐसे नियम बनाएंगे, वो कहते हैं हम ऐसे नियम बनाएंगे कि वे अपना रिलीजियस फ्रीडम जो है, धार्मिक जो आजादी है, वे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे टू स्पीक अगेंस्ट द जेंडर आइडियोलॉजी। वो जेंडर आइडियोलॉजी जो उनकी है, उनके खिलाफ में बात नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिन में हमें ऐसा बंधन डाला जाएगा कि हम कुछ भी अगर बात करेंगे तो हम पर एक्शन ली जाएगी। हम इनके विरोध में, एक पाप के विरोध में बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत फ्रीडम बचा हुआ है, थोड़े समय थोड़ा सा फ्रीडम जो भी है उसका हमें सही इस्तेमाल करना है। Christian churches and the religions of the world have no choice. Let us listen carefully. Christian churches and the religions of the world have no choice. आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। Listen carefully. सब लोग यहाँ मत देखो, मेरे तरफ देखो। Okay, listen very carefully. Okay, कि क्रिश्चियन जो चर्चेस है और रिलीजियस ग्रुप है, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है but to accept our position, because this will be a system that will be implemented in the ID 2020 project. उनका एजेंडा है ID 2020 जो लागू हो रहा है और जनवरी से पूरी तरह से वो लागू करने वाले हैं वैक्सीन के साथ। कई दिनों में आपसे कहा वैक्सीन लेंगे तो फ्रीडम रहेगी, वैक्सीन नहीं तो कहीं भी
भी जा नहीं पाएंगे, कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे, खरीदी बिक्री नहीं करेंगे, कैन नॉट सेल एंड बाय, कैन नॉट ट्रैवल। आप कहीं जा नहीं सकते, गांव जाना है वैक्सीन लेना पड़ेगा, नौकरी में जाना है वैक्सीन लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना है वैक्सीन लेना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल जाना है वैक्सीन लेना पड़ेगा, कुछ भी ये कंपलसरी होने वाला है, होगा, हो रहा है, बहुत सारे राष्ट्रों में शुरुआत हो गई है। उनके एजेंडे के अनुसार तुम्हारे पास मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी, okay, because this will be the system that will be implemented in the ID 2020 project to destroy our enemies. Who are the enemies? कौन enemy है वो? हम लोग। हालेलुया। वे कहते हैं कि हम लोग उनके enemy हैं, उनका शत्रु है हम लोग, डिस्ट्रॉय करेंगे उनको, ओके करेंगे, to destroy our enemies that and they will be bound under the law. उन्हें हमारे कानून के अंतर्गत उन्हें बंधन में रखा जाएगा। उनका कानून, तुम्हारा मेरा कानून, बाइबल का कानून नहीं चलेगा उनके सामने। बट थैंक गॉड व्हेन दिस कम्स इन द वर्ल्ड, ये पूरी तरह से दुनिया में लागू होने से पहले हमारी आशा है, धन्य आशा है कि इस ट्रिबुलेशन पीरियड में, महासंकट के समय में कलीसिया पृथ्वी पर नहीं रहेगी। अगर आप किसी को रहना है तो मनमाना जीवन जी सकते हैं, किसी को रहना है इस बंधनों में तो आपको इनको खुश करने के अलावा और उनकी चॉइस जो है वो पूरी करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर जेकब, ब्रदर आप लोग को समझ में आ रही है, ब्रदर रोहित, ओके, आई होप मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही होगी। बहुत आसान शब्दों में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ओके। सो वो कहता है कि ये नई सिस्टम लागू करेंगे, अगर कोई विरोध करेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, हम लोग हमारे एनिमी को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको नए नियम के अंतर्गत बांध कर रखेंगे। विद दिस प्रोजेक्ट वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट एबॉर्शन, ओके। दिस इज इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग इस नए कानून को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। कौन सा कानून? कि एबॉर्शन। पूरी तरह से पूरे दुनिया भर में जैसे कि आज आजादी है वैसे ही पूरी तरह से एबॉर्शन किया जाएगा। न्यूट्रलाइज द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू होमोसेक्सुअलिज्म एंड लेस्बियनिज्म। समझाता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या उनका एजेंडा है? क्यों वो लोग शादी करने से मना कर रहे हैं? अब स्त्री पुरुष के बीच में शादियां नहीं होंगी। लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिज्म का मतलब है कि समलैंगिकता, और लेस्बियन जो है स्त्री पुरुष पुरुष के साथ, ये एजेंडा वो लागू करेंगे ताकि वे लोग बच्चे पैदा न कर पाए और दुनिया की आबादी न बढ़ पाए अंडर द फ्रीडम ऑफ न्यू रिलीजन। कितना खतरनाक एजेंडा है। प्रेज द लॉर्ड। ये भयानक एजेंडा है प्यारे भाई और बहनों इनका, और इसके बारे में कई सालों से मैं सुनता आया हूं, लेकिन आज ये ऐसा एक रिपोर्ट आया है एक सेवक के द्वारा जिसमें हमको समझने के लिए बहुत आसानी हो रही है, ओके। तो क्या कहते हैं वो लोग? इस नियम के अंतर्गत हम लोग ग्लोबल जो एजेंडा है वो एबॉर्शन जो है वो न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि हम लोग जो जागतिक जो लोगों का बढ़ना है, यानी आबादी का बढ़ना है, उनको होमोसेक्सुअल के द्वारा, लेस्बियनिज्म के द्वारा रोक देंगे। एंड वी विल वैक्सीनेट चिल्ड्रन। हेलो, सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल वैक्सीनेट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स so that only 10% of children are born for an equitable reduction. Praise the Lord. क्या उनका एजेंडा है इसके अंतर्गत? कि वो बच्चों को ऐसे वैक्सीन देंगे और बड़े लोगों को भी, ताकि सिर्फ 10% बच्चे ही पैदा हो जाएंगे धरती पर। ये उनका एजेंडा है। ऑफ कोर्स गॉड्स विल प्रिवेल, ओके। परमेश्वर की योजना ही पूरी हो जाएगी, ये उनका एजेंडा है, ओके। लेकिन जैसे कि अंत दिनों में प्रभु ने कहा था कि ये सारी बातें होगी, हमारा फ्रीडम निकाला जाएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाएगा, वन रिलीजन आ जाएगा, और वो जो सारी बातें हो वो होने वाली है, जो होने वाला है वो होने वाला है। हाँ? तो बाइबल के उनके एजेंडे के अनुसार ये क्या करेंगे? वी विल वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन। अभी आपको कहा कि विदाउट वैक्सीन योर चिल्ड्रन, माय चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू स्कूल।
if we are going to be here in that period. यीशु जब तक नहीं आता है, कलीसिया को उठाए जाने की समय नहीं आता है, और अगर ये हम पर लागू कर दिया जाए तो हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। और अगर ये वैक्सीन अगर कंपल्सरी है तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट है, उनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। ओके ओके, वी विल डिक्लेयर। अब थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा समय हो सकता है। ओके, थोड़ा समय आज लग सकता है। ओके, वी विल डिक्लेयर दैट क्रिश्चियन चर्च इज अ टफ चैलेंज। वो कहते हैं, हम ऐसा घोषणा करेंगे कि क्रिश्चियन मसीह लोग चर्च जो है ना, वो टफ चैलेंज है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, वो डरते हमसे। वो डरते हमसे। वो कहते हैं कि क्रिश्चियन पीपल वो हमारे लिए बहुत बिग चैलेंज है, टफ चैलेंज है, दैट वी विल ओवरकम। उनका क्या कहना है? हम लोग ओवरकम करेंगे उनको। बट नो, आवर गॉड, यीशु ने कहा, मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा। आई विल बिल्ड माय चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इनको पूरी तरह से पता है कि इनका गॉड, इनका परमेश्वर बहुत अद्भुत है, महान है। ये डरते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना कि ये क्रिश्चियन पीपल टफ चैलेंज है हमारे लिए, और टफ चैलेंज होंगे हम लोग। हमारी प्रार्थना ही काफी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना उनके लिए काफी है। ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी हिट इट हार्ड इन इट्स इग्नोरेंस, वी टुक अवे इट्स राइट एंड लोड इट्स फेथ बाय 60%। उनका कहना है कि अब हमने इस पैंडेमिक के द्वारा 60% उनका जो उनके राइट्स है ना, वो कम कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया भर में हमें प्रार्थना नहीं कर दी जा रही है, कलीसिया में एक साथ मिलने नहीं जाने दिया गया। अमेरिका, यूरोप में अभी भी कई जगह बंधन है, चर्च में एक साथ नहीं मिल, तो उनका एजेंडा सही है। वो लोग कहते हैं कि 60% हम लोगों ने उनको रोक दिया है पूरी दुनिया भर में। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले दिन में वैक्सीन जब लागू होगी, वो शायद चिप भी आएगी। अब क्या होने वाला है आपको पता है। ऑफ कोर्स हम उसमें चिप देने के समय में हम तो नहीं रहेंगे। ओके, जो वो लोग कहते हैं कि उनका क्या कहना, lower its faith by 60% and challenge is to lower its membership। उनकी मेंबरशिप को कम करो। डेसिमेट इट्स बिलीफ, उनका विश्वास खत्म कर दो। डेसिमेट, विश्वास नीचे लेके आओ, उनका विश्वास खत्म कर दो। और यही तो है ना, कलीसिया में लोग नहीं मिल पा रहे, सहभागिता नहीं हो रही, एक्चुअल सहभागिता नहीं हो पा रही, तो लोग विश्वास में कमजोर पड़े हैं। कहाँ है सहभागिता? अभी ब्रदर ने भी कहा ना कि कहाँ एकता हमारे बीच में, कुछ एकता है नहीं। अपने अपने घरों में लोग खा पी कर रुकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, और उनका क्या एजेंडा है कि उनका विश्वास खत्म कर दो, उनकी मेंबरशिप को कम करो। ओके, बड़े बड़े चर्चेस में जो शुरू हुए अभी कई दिनों में, जहां 300-400 लोग आते हैं ना, वहां 60-70 लोग ही बैठ पाते चर्च में। तो मेंबरशिप कम हुई कि नहीं हुई? 65 साल के ऊपर कलीसिया में नहीं जाने का, 10 साल के नीचे कलीसिया में नहीं जाने का। सो 10 साल के जिनके बच्चे, वो लोग, उनके माँ बाप भी कलीसिया में नहीं जा सकते हैं। हो गया मेंबरशिप कम। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उनका एजेंडा सही है कि उनके मेंबरशिप को कम करो। वी विल टेक अवे देयर रिलीजियस राइट्स। We will take away their religious rights, and they will be subordinated to the new laws, and they will cease to exist। इनका शैतानी एजेंडा देखो कि हम उनका फ्रीडम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उनके नियम हम रद्द करेंगे, ऐसे कि वे लोग पृथ्वी पर मसीह लोग एग्जिस्ट होना, यानी कि पृथ्वी पर मसीह लोगों का रहना ही खत्म कर देंगे। ये होने वाला है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं होने वाला है, ये कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ट्रिबुलेशन पीरियड में वो लोग कर सकते हैं। जब यीशु मसीह कलीसिया को, पवित्र आत्मा को इस दुनिया से निकाल देगा, और जब शैतान का आत्मा और खुद एंटी क्राइस्ट पृथ्वी पर उतरेगा, जो उसका समय दिया गया है, उसके लिए नियुक्त किया, उस समय में वो ये कर सकेंगे। और उस समय में जो मसीह लोग रहेंगे, उनको बिना मरे वो लोग जी नहीं पाएंगे। उनको मसीह के लिए मरना पड़ेगा, या फिर एंटी क्राइस्ट पर विश्वास करना पड़ेगा, उनको नंबर लेना पड़ेगा। ओके, सो वो कहता है कि they will cease to exist, we will not agree with them, we only subject them to the new system। हम उन्हें हमारे सिस्टम में सब्जेक्ट करने को भाग पड़ेंगे।
हम उनको अपने सिस्टम में लाएंगे और हमारे सिस्टम के अनुसार उन्हें चलना होगा। Our goal is to prepare 1,000 million lesbians, 1,500 million homosexuals. उनका एजेंडा है 1,000 मिलियंस का हिसाब लगाओ कितने करोड़ होते हैं, और 1,500 million homosexuals, lesbian and homosexuals, to prevent the birth of 5,000 million children. 5,000 million children तो दुनिया में पृथ्वी भर में पैदा होते हर साल में, lead to the death of 500 million people through viruses, epidemics, pandemics and other manipulations that we will not declare for now. हम लोग इस वायरस के द्वारा, पैंडेमिक्स के द्वारा, एपिडेमिक्स ऐसी जो बीमारियां हैं उनके द्वारा ये संख्या जो दुनिया में पैदा होने बच्चों की संख्या कम करेंगे, क्योंकि हम लोग होमोसेक्सुअल्स और लेस्बियनिज्म के रूल को लागू करेंगे ताकि पुरुष स्त्री शादी न कर पाए, स्त्री और पुरुष शादी कर पाएंगे, ताकि उनके द्वारा बच्चे पैदा न हो, और हम उन्हें रोक देंगे और एक ऐसा एजेंडा हम लागू करेंगे जो अब हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। This is a global challenge that we will achieve with the support of our mother church, and which will play different roles in our favor. And now we are preparing to receive our great leader to globalize the world and control all things in our system. वो कहते हैं कि अब हम तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा एक वर्ल्ड लीडर जो आएगा जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा और इस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, और वो कौन रहेगा? एंटी क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। और वर्ल्ड लीडर कौन रहेगा? एंटी क्राइस्ट रहेगा। फॉर द UN, the only pact with the Christian church is to accept the rights agreements and join us to renounce their Christian belief. उनको हमारे साथ ज्वाइन होना पड़ेगा और अपने मसीह जो विश्वास है और नियम है उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट लेट इट पास। नहीं तो हम उन्हें जीने नहीं देंगे, हम उन्हें लागू होने नहीं देंगे, उनके नियम हम कबूल नहीं करेंगे। नाउ अंतिम पैराग्राफ, नाउ फिनिश, आई एम गोइंग टू फिनिश इट। We will apply the full weight of humanistic law against religious principles. वो कहते हैं हम लोग पूरी तरह से हम ऐसा वजन देंगे, ऐसा जोर देंगे कि हम अपने नियम उन पर लागू करेंगे और उनके नियम जो है हम रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे, और ताकि वे लोग तितर बितर हो जाए, because the time has come to control humanity and our humanistic religion. Wow. It's very clear. Time has come. वो कहते हैं समय आ गया है कि अब हम दुनिया को अपने कब्जे में ले और मनुष्य जाति पर अपना नियंत्रण हम लागू करें। It will bring a religious solution through the United Nations. और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये उनका धर्म जो रहेगा, जागतिक धर्म, वो हम लागू करेंगे और एक सॉल्यूशन होगा जो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज एन अलर्ट टू द होल चर्च, यूनिवर्सल चर्च, वेयर आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, फॉर द आवर हैज कम। ये मसीह लोगों के लिए, कलीसिया के लिए एक इशारा है, जो मसीह के, यीशु मसीह के जो सोल्जर्स है, शिष्य हैं, सैनिक है, हम तुम सैनिक हैं, इनके लिए एक जागृति का इशारा है। और मेरे भाई और बहनों, हमें जागरूक रहना जरूरी है। यहाँ ये आर्टिकल, ये जो प्रोफेसी अपडेट का रिपोर्ट है वो खत्म होता है। मेरे भाई और बहनों, जो भी आपको समझ में आया होगा, आप इतना समझ रखो कि हमें अब तैयारी में लगना है। Praise the Lord. कितना समय हमारे पास है हम नहीं जानते, लेकिन we are living in difficult times। इसका वचन हमने पढ़ा, और आपको अगर समझ में आया है तो आप भी वैसे ही जीना शुरू करो, एक दूसरे से मिलो, प्रेम बढ़ाओ, क्षमा करो, हृदय की कठोरता छोड़ दो और प्रभु के साथ जॉइन हो जाओ। Praise the Lord. हालेलुया। ओके, परमेश्वर का वचन स्मिता के पास आया था कि परमेश्वर कहता है कि मेरा भय जो है ना, मेरे लोगों पे ही नहीं है। नहीं, लोग मुझे डरते नहीं है, लोग मेरा डर या भय नहीं मानते।
तो दुनिया के लोग क्या मानेंगे? जब परमेश्वर कहता है मेरे लोग भी मेरा नहीं मानते हैं, तो कोई तो हर एक अपने अपनी दिशा में जा रहा है। सो पहले भाई बहनों, हमें परमेश्वर का डर रखना है और परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि यीशु हमें ले जाने के लिए जल्दी आ रहा है। आइए हम आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट प्रभु के सामने पड़ा, एक जो प्रोफेसी अपडेट रिपोर्ट, ताकि तेरे लोग ये सुने और प्रभु सावधान हो, जागरूक हो प्रभु परमेश्वर। और अब तो प्रभु नींद से जाग उठे और प्रभु परमेश्वर अपने हृदय की कठोरता, मनमानी करना छोड़ दे। और प्रभु पिता हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग प्रभु पिता हालेलुया, मेरे प्रभु पिता तेरे साथ जुड़ जाए, ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, तेरा डर और तेरा भय जो कलीसिया से निकल गया है, वो फिर से आए, तेरे लोग जुड़ जाए प्रभु तेरे साथ और इसके साथ इसी प्रार्थना करता। इस समय तेरे लोग जो अपने भंडार में अपनी भेंट अर्पण करेंगे, प्रभु पिता प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर हालेलुया, हर एक भाई बहन जो कमाता है उनको देने के लिए अनुग्रह करता, कि प्रभु तेरे कलीसिया का खर्चा जो है और जो भी सेवा का खर्चा वो निकल सके और तेरे लोग देने के द्वारा आशीषित हो जाए। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। अगले संडे हम फिर से मिलेंगे, तब तक हमारी रक्षा कर और हमारे संग रहकर हमें प्रभु परमेश्वर तू चला। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमेन। ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। May God